Hello students, this is the fourth part of the chapter The Cherry Tree from your book My English Garden. So in the last part we saw that Rakesh is looking for his grandfather and he searches him for everywhere but he finds nowhere. So let's see that where his father has gone. Then he looked out of the bedroom window and saw Grandpa reclining on a cane chair under the cherry tree. So finally, where does he find his grandfather sitting? He finds his grandfather sitting in the garden. वो garden में बैठे हुए हैं. And where is he sitting? He is sitting on, he is reclining. Reclining means that when we sit on a chair, जो कि रोलिंग चेयर होती है जिस पे हम बैठते हैं तो मूव करने लगती है. सो ही इज़ रिक्लाइनिंग, वो ढालू नुमा चेयर पे बैठे हुए हैं एंड ही इज़ मूविंग ऑन द चेयर, रिक्लाइनिंग ऑन अ केन चेयर एंड द चेयर इज़ मेड अप ऑफ केन. वो केन यानी वेद की बनी हुई है. एंड वेयर इज़ ही सिटिंग? ही इज़ सिटिंग अंडर चेरी ट्री. वो चेरी ट्री के नीचे बैठे हुए हैं. There is just the right amount of shade here, said Grandpa, and I like looking at the leaves. Now, when he sees Rakesh worrying about him, he says to Rakesh, वो राकेश से कहते हैं that I got some shade here of cherry tree. That's why I am here and I like looking at cherry tree. मुझे cherry trees को चेरी ट्री की जो लीव्स हैं मुझे उनको देखना अच्छा लगता है. दैट्स वाई आई हैव कम टू रेस्ट अंडर द चेरी ट्री. मैं यहाँ पर बैठकर रेस्ट कर रहा हूँ. नाउ देर इज़ जस्ट ओके. सो नाउ व्हाट हैपन्स? दे आर प्रिटी. नाउ his grandfather is describing the leaves of cherry tree. What does he say? He says they are pretty leaves, said Rakesh. राकेश कहता है अब हियर ग्रैंडफादर says to Rakesh that he likes looking at cherry trees leaves, and in return Rakesh also says that yes, you are right, they are really very pretty. वो बहुत खूबसूरत हैं. And they are always ready to dance if there is breeze. And what Rakesh says, वो कहता है these leaves are ऑलवेज रेडी टू डांस इफ़ देयर इज़ ब्रीज. अगर हल्की फुल्की भी हवा होती है, ब्रीज मीन्स बहुत ही हल्की सी अच्छी सी हवा होती है. सो जब भी हवा होती है, ब्रीजिंग होती है, सो दे लव डांसिंग अलॉन्ग विद द ब्रीज. उसको ब्रीज में इन पत्तियों को हवा के साथ डांस करने में मज़ा आता है, राकेश कहता है. नाउ आफ्टर ग्रैंडपा हैड कम indoors, Rakesh went into the garden and lay down on the grass beneath the tree. He gazed up through the leaves at the great blue sky, and turning on his side, he could see the mountain striding away into the clouds. Now, what he says in this paragraph. So, first we'll understand the meaning of gaze. Gaze का मतलब होता है देखना, and beneath का मतलब होता है below. And स्ट्राइडिंग अवे मतलब किसी बहुत ही जल्दी आना. सो जो सी द माउंटेन इज स्ट्राइडिंग अवे इनटू द क्लाउड. ठीक है. सो ऐसा लग रहा है कि वो जो माउंटेन है और जो क्लाउड्स हैं. ओके, लेट मी जस्ट टेल यू अगेन. फर्स्ट विल अंडरस्टैंड द लाइन. आफ्टर ग्रैंडपा हैड कम इनडोर्स, जब वो ग्रैंडपा अंदर आ जाते हैं. नो, earlier he was sitting under the tree, he was looking at the leaves, but when his grandpa comes inside, जब घर के अंदर आ जाते हैं, then Rakesh goes to the garden and he lays down on the grass. वो घास पर लेट जाता है beneath the tree, यानी below the tree, वो नीचे लेट जाता है. and he also starts looking at the leaves, and he looks through the leaves at the great blue sky. And
थ्रू लीव्स, जो पत्तियों के बीच से ही लुक्स एट द स्काई, ब्लू स्काई, वो पत्तियों के बीच से ब्लू स्काई को देखता है। एंड देन टर्निंग ऑन हिज साइड, अपने साइड में दी अदर साइड, दूसरी तरफ वो मुड़ता है। देन व्हाट ही सीज, वो देखता है कि द माउंटेन्स, ही कुड सी द माउंटेन इज स्ट्राइडिंग अवे टू द क्लाउड्स, और वो जो माउंटेन है वो क्लाउड्स की तरफ बहुत ही स्पीड में जा रहे हैं। यहाँ पर इट डजेंट मीन दैट माउंट्स आर स्ट्राइडिंग, यस, सो जो माउंटेन है, सो हियर डजेंट मीन दैट माउंटेन्स आर मूविंग। Here simply when we there is a small example I want to give, that if it is night and if we walk and look at the sky, जब हम आसमान की ओर देखते हुए वॉक करते हैं, then it seems that moons and stars are walking with us, ऐसा लगता है कि दोनों ही हमारे साथ वॉक कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है, बिकॉज इट इज़ हिली एरिया, सो यहाँ पर माउंटेन्स हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, हिल्स हैं। सो जो क्लाउड, जब व्हेन द क्लाउड्स आर मूविंग, जब क्लाउड मूव कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि माउंटेन्स आर स्ट्राइडिंग अवे इनटू द क्लाउड। ऐसा लग रहा है कि जो माउंटेन्स है वो क्लाउड्स में, क्लाउड्स की तरफ जा रहे हैं, और दे आर गेटिंग सो क्लोज टू द क्लाउड्स, जो माउंटेन है वो क्लाउड्स में बहुत ही क्लोज हुए जा रहे हैं। He was still lying beneath the tree when the evening shadows crept across the garden. So he keeps laying under the tree for long until it is evening. जब तक रात नहीं हो जाती है, शाम नहीं ढल जाती है, शाम हो जाती है, तब तक वो क्या करता है, he keeps laying under the tree, वो नीचे लेटा रहता है, गार्डन पर पड़ा रहता है। Grandpa came back and sat down beside Rakesh. Now when it is evening, Grandpa also comes and joins Rakesh. वो भी राकेश के साथ बैठ जाते हैं उसके बगल में। And they waited in silence until it was dark. And both of them remain there until it is dark. जब तक वो रात नहीं हो जाती है तब तक क्या करते हैं, वो दोनों लोग वहीं लेटे रहते हैं। There are so many trees in the forest, said Rakesh. Now as they are sitting together, so they start talking to each other. So Rakesh says to his grandfather that there are so many trees in this forest. वो कहता है बहुत सारे पेड़ हैं इस जंगल में। What is so special about this tree? अब राकेश कहता है, अपने ग्रैंडफादर से बोलता है that there are many trees in this forest, but why this tree is so special? ये हमारा चेरी ट्री इतना स्पेशल क्यों है? Why do we like it so much? हमें इतना ज़्यादा ये क्यों पसंद है? Why do we always like sitting and staring at its growth? हर चीज़ हमें इसकी अच्छी लगती है, इसकी ग्रोथ होना, इसमें ब्लॉसम्स होते हैं, इसमें जो बर्ड्स आती हैं, so everything we like. So why is it so? ऐसा क्यों है? Then grandpa replies that we planted it ourselves. वो कहते हैं we like it too much. Why? Because we have planted it. We have grown it ourselves. हमने इसको खुद ही उगाया है. That's why it is special. और इसीलिए क्या ये special है. Just one small seed, said Rakesh, and he touched the smooth bark of the tree that had grown. Now, listening to his grandfather, he says to grandfather, this miracle has taken place just because of one small seed. ये जो miracle हुआ है, ये जो ट्री है, चेरी ट्री है, ये क्यों आ गया? क्योंकि ये एक स्मॉल सीड का क्या था, मिरेकल था, कमाल था। ऐसा राकेश बोलता है अपने ग्रैंडफादर से। देन आफ्टर सेइंग दिस लाइन ही टचेस द स्मूथ बार्क, जो चेरी ट्री का स्मूथ बार्क होता है, स्टेम होता है, उसको टच करता है, एंड जो कि हैड ग्रोन, जो कि अभी हाल ही में ग्रोन हुआ है, यानी जिसकी ग्रोथ हुई है।
He ran his hand along the trunk of the tree and put his finger to the tip of a leaf. How changed, he said. Again, first he touches the smooth bark of the tree, and then again he ruffles his hand over the trunk जो मेन स्टेम होता है ट्री का, उस पर अपने हाथ को सहलाता है. एंड ही पुट्स हिज फिंगर टू द टिप ऑफ द लीफ, जो लीफ है उसकी पत्ती पर अपना हाथ फेरता है. एंड कहता है हाउ इट चेंज, ये कैसे चेंज हो गया है. Now here both of them are sitting together and talking about cherry tree. That shows that how much they love this cherry tree. कितना इन लोगों को, इन दोनों को कितना cherry tree से लगाव है. Now grandpa smiles and says just like you. अब grandpa also compares Rakesh with this tree से इनकी तुलना करते हैं, राकेश की तुलना करते हैं. उसके ग्रैंडफादर हंसते हुए कहते हैं दिस चेरी ट्री इज़ जस्ट लाइक यू, तुम्हारी तरह ही है. इट हैज़ ग्रोन वेरी सून एंड वी कुड नॉट सी द चेंज बट बोथ ऑफ यू आर ग्रोन अप. दोनों लोग बड़े हो गए बट हमें पता ही नहीं चला कब आप दोनों ग्रो हो गए. नाइट सेटल डाउन ऑन द फुट हिल्स एंड राकेश लुक्ड एट द ट्री स्प्रेड अगेंस्ट द स्टारी स्काई. अब नाउ इट्स डार्क नाइट, रात हो गई है. एंड द फुट हिल्स एंड एवरीवेयर द नाइट हैज़ सेटल डाउन, हर जगह रात हो चुकी है. एंड राकेश लुक्स एट द ट्री स्प्रेड अगेंस्ट द स्टारी स्काई. जब वो ट्री की तरफ देखता है तो उसको लगता है दिस ट्री हैज़ स्प्रेड अगेंस्ट द स्टारी स्काई. ऐसा लगता है उसको कि जो स्टारी स्काई मीन्स फुल ऑफ द स्काई विच इज़ फुल ऑफ स्टार्स, जो कि आसमान जो कि तारों से भरा हुआ होता है, उस आसमान को स्टारी स्काई बोलते हैं. तो उसको लगता है दिस ट्री इज़ स्टैंडिंग अगेंस्ट दिस स्टारी स्काई. उसको लगता है कि बिल्कुल विपरीत ये जो पेड़ है स्काई के विपरीत खड़ा हुआ है. ही सेड टू हिमसेल्फ. नाउ दिस लाइन ही सेज टू हिमसेल्फ, अपने आप से ही कहता है. One day I will tell my children how Dada and I planted this cherry tree many years ago when I was 6. So now again he's talking to himself and thinking this that when he has children, जब उसके बच्चे होंगे, then he would tell his children that how his Dada and he planted this cherry tree. And that time he was just 6 years old when he planted that seed, and that from that seed this beautiful cherry tree has come up. So children, this is all about this chapter. I hope that you have understood all the paragraphs. Now for today the questions are, where does Rakesh find his grandpa sitting? जो राकेश के ग्रैंडफादर हैं उसको राकेश कहाँ पर बैठा हुआ पाता है? दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई इज ग्रैंडपा लुकिंग एट द लीव्स, चेरी ट्री लीव्स. वो चेरी ट्री की लीव्स को क्यों देख रहे हैं? दिस इज सेकेंड क्वेश्चन. नाउ थर्ड क्वेश्चन यू हैव टू आंसर दैट okay. Third question you can answer. Yes. Why did Rakesh ask his grandfather that why this tree is special? वो राकेश अपने ग्रैंडफादर से क्यों कहता है कि ये ट्री स्पेशल क्यों है? And the last question is that what all Rakesh says to himself when he is sitting under the tree. जब वो ट्री के नीचे बैठा हुआ है वो अपने आप से क्या बातें कह रहा है? You have to tell these 4 answers. Okay children, thank you.